Hello and welcome everyone. We are now going to have a very small part because we are towards the end of the lecture. We are going to start our next chapter. Set off and carry forward of loss. Sing. Loss. Sing. Loss. Go for it. Sir, why are you giving so much importance to loss? Ultimately, it is Income Tax Act, not Loss Tax Act. But this chapter is specially created to adjust losses. Small piece of information I would like to give you. Income in income tax law is divided in 5 categories called 5 heads of income. All 5 are over. Sometimes you pay tax on income of other people, clubbing that we have completed much before we started our PGBP. After salary house property itself. We are still not at NTTI, bro. We are still not at GTI. You are one step away from your GTI. If you do that, you get your gross total income. Then we have one last chapter called deductions and we reach NTTI. Samjha? So did I tell you that if TDS is not done in detail, so in 10 lectures we get done. And TDS is to be done in detail. So 15 lectures mein, but usse zyada we are not going to be consuming. From today to complete our syllabus. We are near completion of our syllabus. Shantini, other subjects will start. No, I will. मुझे लगता है मेरा 1 to 4 I will vacate the slot. So when thereafter your lectures will be 4:30 to 8:30 only. समझ लगा ऐसे तो हम सपने में भी नहीं देखते. Sir, why are you giving so much importance to loss? Because let me summarize this chapter for you. Whenever an assessee is doing 2 activities, supposingly there is an assessee in furniture business. Furniture ke business mein he has got a profit of 5 lakh. And the assessee simultaneously is also doing electronics ka business. Can an assessee have 2 businesses? Saath mein is also doing electronics. Electronic ke business mein during the year he has suffered the full market is captured by Jethalal. So he has not left only anything for me. So 2 lakh ka loss suffered. So in our taxable income NTTI, if we have to write our PGBP, we are writing 3 lakh. That is set off. We are going to set off our loss of rupees 2 lakh against profits of 5 lakh. Set off of 2 against 5. We are not adjusting 5 against 2. We are adjusting 2 against 5. Some are like, sir, चक्कू कलिंगर पे मारू के कलिंगर चक्कू पे मारू, कटेगा तो चक्कू कलिंगर. I translate, it's okay. Kalinger also, you may not know what. Watermelon. So whether I hit a knife on a watermelon or a watermelon on a knife, it is going to cut the watermelon, not the knife. क्या पका रहा है? 2 against 5. You need to understand that this is why I was singing loss. Okay, we are not adjusting 5 against 2. We are adjusting 2 against 5, and it does make a difference. Okay, supposingly we don't have 5 lakh ka profit. We are only doing electronics ka business. So we have 2 lakh ka loss. We can't adjust it against anything. Obviously, taxable income is 0. Income kya loss hai? So we carry forward our loss to future. Next year, if I get profits, supposingly 10 lakh rupees in electronics. So 10 lakh is current year income in year 2. Brought forward 2 lakh rupees to pay tax on 8 lakh. That is called carry forward of loss. Samjha? So if we don't have 5, can we carry forward 2? Yes, we can. If we don't have 5, we can carry forward minus 2. Yes. If we don't have 2, we can't carry forward 5. Sir, next year I will pay tax assuming there is loss. So what are you going to carry forward? Loss. And with that logic, what are you going to set off? Loss. Set off of loss against a profit.
not profit against loss. It does make a difference. Because if there is no profit, loss will get carried forward. But if there is no loss, profit will not get carried. आप समझा क्या? For better understanding of this chapter, you can also say that we are doing a chapter specially dedicated to loss. All rules, regulations, terms, conditions, restrictions in this chapter will apply on the loss. Set off किसका? Loss. Carry forward किसका? Loss. इसके लिए ना I have a very weird example, a very weird analogy, logic. I believe in relating direct tax even with our day-to-day life. तो क्या easy बन जाता है? But this relation can cause some people to get angry. Our tolerance levels have fallen drastically. There was a time when we were kids. Our generation was, we were kids. And bindas, anybody in school, college, a random person on the street was also Jadia, Kalia, Bhaisa, Battery, Chashmis. These things were so normal and everyone found it funny. Pata nahi when we became so sensitive that Jadia bolna becomes body shaming and Kalia bolna becomes colored shaming, that becomes racism. Pata nahi kab ye hamare andar ka system change ho gaya. So it might hurt. Lekin target or intention is not to hurt anyone. Target is today's knowledge of taxation should be better than yesterday. You should be able to understand taxation effortlessly, logically, without putting much memorizing skills. Ye logic hai. And this is definitely going to offend the female department of the class. But whatever offensive thing I will say, थोड़े टाइम बाद जब उसका रीजन बताऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली द सेंटिमेंट्स विल चेंज. जितना भी गुस्सा आएगा दैट विल ऑटोमेटिकली चेंज एंड इट विल गो अवे. ये मेरा प्रॉमिस है. प्रॉमिस. बस रिस्क खाली कितना है, दैट बिटवीन राइट नाउ व्हेन आई विल से इट एंड व्हेन आई विल एक्चुअली गिव यू द रीजन व्हाई आई सेड इट, देयर इज गोइंग टू बी अ गैप इन टाइम एंड दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. मतलब दैट गैप विल गो टू 24 आवर्स. तो वो ट्रायल वाला रोक के रखना प्लीज. इफ एट ऑल यू हैव टू डू एनी कंप्लेन और एक्शन, नो, तो वो कल के लेक्चर के बात करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय दैट टाइम आई विल एलिमिनेट द ऑफेंस दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट नाउ. तो इफ यू वांट टू लर्न दिस चैप्टर, तो ऐसा बोलो, बॉय इज प्रॉफिट, गर्ल इज लॉस. एक दिन का पेशेंस प्लीज, एक दिन का पेशेंस प्लीज प्लीज प्लीज. बॉय इज प्रॉफिट, गर्ल इज लॉस. Why? Because हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी में क्या होता है पता है? We say that लड़की वाला इज होलसेलर, लड़के वाला इज रिटेलर. लड़का वाला, बॉयज फैमिली इज रिटेलर, गर्ल्स फैमिली इज होलसेलर. बॉयज फैमिली हैज ओपन शॉप एंड दे आर वेटिंग, कोई तो कस्टमर आओ. रिटेलर का लाइफ इज लाइक दैट ओनली, नो, कोई तो कस्टमर आओ, कोई तो कस्टमर आओ, कोई तो आओ, कोई तो आओ. बॉयज फैमिली. एज अगेंस्ट दिस, गर्ल्स फैमिली में, मारवाड़ी कम्युनिटी में व्हाट हैपेंस? They get biodata of the boy from somewhere. So they go and visit the boys. वो होलसेलर है ना, होलसेलर तो बैग में माल भर के जाएगा ना रिटेलर की दुकान में. चाहिए क्या तेरे को? माई स्टफ, माई माल, यू वॉन्ट. होलसेलर हैज कम विथ हिज स्टफ. रिटेलर विल डिसाइड आई विल बाय और नॉट बाय. ऐसा ही होता है मारवाड़ी फैमिली में. ओके, गर्ल्स फैमिली फर्स्ट अप्रोचेस द बॉयज फैमिली दैट आई गॉट योर बायोडेटा ऑफ योर सन फ्रॉम समवेयर, वी आर इंटरेस्टेड. बॉयज फैमिली डिसाइड्स कि भाई टाइम हो गया है क्या नहीं, और दे ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गर्ल्स फैमिली. ओके, तो अगर उनको जरा सा भी ऐसा लगता है कि ओके वी आर इंटरेस्टेड, तो दे इनवाइट द गर्ल्स फैमिली. गर्ल की फैमिली बॉय के फैमिली पे दे कम एंड दे आर वेरी स्मार्ट. दे से कि मैं शाम को ऑफिस से फ्री होके आता हूं, दिन के टाइम पे वीकडे में आई कांट कम. पता है क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू कम टू द बॉय का ऑफिस, दे वांट टू कम एंड सी द हाउस. अरे डॉटर आने वाला है ना उनका, वेरी क्लेवर. और शाम को आओ क्या, घर पे ही आता हूं ना, इट्स ओके. ज्यादा कुछ मत करना, ओनली 1 cup of tea, बट आई कम होम. इंटेंशन इज समथिंग एल्स. इफ ही लाइक्स द हाउस, ही विल मीट द बॉय. मतलब गर्ल विल नॉट कम, गर्ल का फादर विल कम, मीट द बॉय. ही विल एनालाइज, इज ही वर्दी ऑफ माई डॉटर. इफ ही थिंक्स यस, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है. अगर उसको लगता है वर्दी है, तो ही विल गो. नेक्स्ट डे he will invite the boys family कि अब आप लड़की देखने आओ. मतलब the boy has passed one level, girl का father. Then they will keep the meeting in a restaurant or something.
मैं इस लेवल तक तो हर मीटिंग में गया, मतलब विच गर्ल का फादर विल से नो, आई वॉज ऑल्सो अंडर दैट। एक दो नहीं आए वापस बिकॉज दे प्रोबेबली डिड नॉट लाइक माई हाउस और समथिंग, बॉय का कुछ प्रॉब्लम था भी नहीं, ओके। अदरवाइज आई रीच द सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में मीटिंग हुआ, 99% केसेस आई वॉज देयर ओनली श्योर कि आई एम गोइंग टू सेंड, तो आई यूज्ड टू फोकस ऑन द फूड इन द रेस्टोरेंट। कोई कुछ तो काम पर्पसफुल निकले कि नहीं, ओके। बट द मोमेंट आई एम नॉट ईटिंग, मतलब माई फैमिली इज लाइक के लगता है इसका, कुछ 17 मीटिंग्स हुए थे, उसमें से 15 में तो उठते उठते उधर तो टेक्स्ट ही बैठे बैठे आई यूज्ड टू टेक्स्ट के नो बोल देना, नो बोल देना। बट आफ्टर द मीटिंग व्हाट हैपेंड, दे जस्ट से बाय एंड गो। बॉयज फैमिली कैन नॉट कॉल द गर्ल्स फैमिली, ये रूल है। इफ दे कॉल मतलब बॉय के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, दे आर डेस्परेट। बॉयज फैमिली कैन नॉट अप्रोच। फर्स्ट लेवल पे भी गर्ल का फादर विल कम, सेकेंड लेवल पे भी मीटिंग होने के बाद में बॉय का फैमिली विल आस्क हिम, गर्ल का फैमिली विल आस्क हर। दे विल से, बॉय का यस भी है ना तो भी दे विल नॉट कॉल, दे विल वेट फॉर द कॉल। तो रूल है, रूल है, गर्ल विल से यस टू हर फादर, मतलब फादर ने पास किया, डॉटर ने पास किया। नाउ इफ द गर्ल्स फादर हैज कॉल्ड, मतलब उनके साइड से वी हैव क्लियर्ड ऑल द लेवल्स, फाइनल डिसीजन हमारा, मतलब बॉयज साइड, मतलब लास्ट राइट टू से यस और नो इज बॉयज साइड। दैट्स टिपिकल मारवाड़ी अरेंज मैरिज क्रोनोलॉजी। वो फोन आने वाले लेवल तक आई रीच्ड 15 टाइम्स एंड सेड नो, ट्वाइस आई हैड सेड यस लेकिन फोन ही नहीं आया, एंड रूल ये है वी कांट कॉल। तो 2 बार हुआ, 2 बार हुआ, एंड देन फाइनली देयर केम अ टाइम वेयर फोन भी आ गया एंड आई ऑल्सो सेड यस, तो चिपका दिया। दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो इस स्टोरी में क्या समझा सर, हम लोग टैक्स करने आए थे बाय द वे। पिक अप द लॉस एंड सर्च फॉर द प्रॉफिट। द प्रॉफिट विल नॉट सर्च फॉर द लॉस, द लॉस हैज टू सर्च फॉर द प्रॉफिट। इसलिए मैंने आपको बोला, क्या बोला, आई हैव स्टिल नॉट कम टू द मेन रीजन। वो आई एम श्योर आई विल नॉट रीच ऑल्सो टूडे, आई विल रीच टुमारो ओनली। अभी डर लग रहा है। तेरे को चलेगा ना। But first time she spoke in 2.5 months. Huh? I have never heard her voice before today. First time बोली. Whatever she said must be very funny because everyone is laughing, but I did not hear. What did you say? तेरा एम्स्टरडैम का टिकट कटवा तो पॉइंट पे आता है। किसके सामने? चले, boy is profit, girl is loss, but you please have patience till tomorrow because tomorrow I will tell you the real reason. अभी तक तो मैंने खाली मारवाड़ी फैमिली का, जॉइंट फैमिली का स्टोरी बताया। Tomorrow I will tell you the real reason. अभी के लिए use that story and apply the logic here. You will pick up 2 lakh and search for. You will not pick up 5 lakh and search for. Did you understand this? Pick up loss, search for profit. वही तो मैं बोला था, गर्ल वाला search is for boys, boy वाला cannot call someone. Is that clear? This is a special dedicated chapter only for loss. Every time we talk anything in this chapter, we are talking only about a loss. This chapter is a simple process of 3 steps that have to be followed in order. अच्छा, the main reason why I said वो boy is profit, girl is loss ना, वो बाद में पता चलेगा, okay? और अनफॉर्चुनेटली नॉट इन टूडेज लेक्चर बिकॉज दैट मच टाइम वी डोंट हैव। और अगर आपका पेशेंस नहीं है तो आई विल हैव टू, यू हैव लेक्चर आफ्टर मी। किसका? तो फिर मैं लेक्चर एक्सटेंड, क्योंकि आज ही रीजन चाहिए था। नहीं, एनीवेज आई ऑल्सो हैव टू गो फॉर अ वेरी अर्जेंट मीटिंग। कोई बात नहीं, देयर आर गोइंग टू बी 3 steps and those 3 steps you have to follow in order.
Step number 1, which is given in section 7070, something called inter-source adjustment. Inter-source adjustment. स्कूल गए हो? स्कूल में हाउस वाउस था, जैसे हमारे स्कूल में इट वॉज नेहरू, तिलक, कबीर एंड टैगोर. कलर वही था. नेहरू वॉज, हमारे उधर नेहरू वॉज रेड, कबीर वॉज येलो, तिलक वॉज ब्लू. आई वॉज इन तिलक एंड कबीर वॉज येलो, नेहरू वॉज एंड टैगोर वॉज ग्रीन. तो between two houses when there is a match, you used to call it inter house. Then between your school and another school, मतलब two schools तो inter school हो गया, two houses तो inter house हो गया, two classes तो inter class, two CA firms तो inter firm, two countries तो international, two states तो inter state, मतलब two sources तो inter source. There are going to be two sources under the same head of income. You want example? ये ले. Furniture, electronics, both are under same head of income. Are there two sources in same head? तो inter source. मतलब pick up 2 lakhs and search for profits. सबसे पहले where? Within the same head of income. मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सर्च फॉर हाउस प्रॉपर्टी इनकम. पीजीबीपी का लॉस, सर्च फॉर पीजीबीपी इनकम. कैपिटल लॉस, सर्च फॉर कैपिटल गेन्स. आईएफओएस लॉस, सर्च फॉर आईएफओएस प्रॉफिट. सैलरी में लॉस नहीं हो सकता. यू कांट से के दिस ईयर माई बॉस डिडंट हैव मनी सो आई पेड हिम. इन केस यू डू, उसका कोई डिडक्शन नहीं है सेक्शन 16 में. देयर इज ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स. इवन इफ यू डू, तो सैलरी में देयर कैन नेवर बी अ लॉस. बाकी सब में देयर कैन बी अ लॉस. पिक अप द लॉस एंड सर्च फॉर विद इन द, मतलब बोथ सोर्सेज शुड बी सेम एंड देयरफॉर वी कॉल इट इंटर. बट ऐसा पॉसिबल है कि यू डोंट हैव प्रॉफिट इन द सेम हेड, तो यू सर्च फॉर प्रॉफिट इन अदर हेड. एंड अगर यू आर सर्चिंग इन अनदर हेड, मतलब 2 डिफरेंट हेड्स, वन का लॉस वन का प्रॉफिट, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट. यू अंडरस्टैंड? दिस टाइम 2 क्या होगा? 2 हेड्स, सेम प्रीवियस ईयर. मतलब फर्स्ट पिकअप लॉस. यू विल नेवर पिक अप प्रॉफिट, पिक अप लॉस एंड सर्च फॉर फर्स्ट. वेयर विल यू सर्च? सेम हेड. फॉर एग्जाम्पल यहां पे वी गॉट द प्रॉफिट इन द सेम हेड, तो वी हैव टू एडजस्ट इट. इफ सेट ऑफ इज अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, इट इज कंपल्सरी. पता है ना, सीए एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, दे आर कंपल्सरी. पता है ना, सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, इट इज. इफ यू आर एलिजिबल यू हैव टू टेक इट. मतलब ये 5 लाख है तो स्टेप 1 यू हैव टू डू. ये समझे? द स्टेप्स आर इन कंपल्सरी ऑर्डर. बट इफ यू डोंट हैव दिस 5 लाख, तो यू विल गो वेयर? टू अदर हेड्स. जैसे ये बिजनेस का लॉस है, तो गो टू द अदर 4 हेड्स. मतलब आई विल से समथिंग, प्लीज से अंडरस्टैंड, प्लीज से अंडरस्टैंड. You will pick up a loss, search for profit. First you will search in the same head. You will go to other head only if there is no profit in this head. You can go and take house property loss against salary or PGBP only if there is no house property profit. If there is house property profit, you have to do against it. You can't do it against other heads. मतलब step 2 will be done only if step 1 is not possible. If step 1 is possible, it is not possible, it is compulsory. कुछ समझा क्या? सुनो सुनो, इट इज सिंपल. यू नो हाउ टू मेक कर्ड. देखो लाइफ की हर चीज से टैक्स रिलेट. दही कैसे बनता है? दूध से. दूध को ऐसे ही बोले बन, दही बन. यू पुट 1 स्पून कर्ड इन मिल्क तो इट बिकम्स कर्ड. बट कर्ड यू हैव टू मेक. अगर कर्ड होता आपके पास तो बनाते क्यों? You don't have curd, that is why you are making curd, no? दही है ही नहीं, तो where do you bring it from? नेबर से जाके मांगा 1 चम्मच दही. Only if you don't have. If you have, then don't take from your neighbors. मतलब if you have profit, then don't go to other heads. Go to other heads if you don't have profit. Step 2 will happen if step 1 is not possible. Boom. किधर?
तो एक आंसर दिस क्वेश्चन, व्हेन विल स्टेप 2 हैपन? तो इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स देन ओनली वी केम हियर, नो? मतलब मैं करूंगा आके, आई विल डू दैट. इफ यू हैव 5 लाख, एडजस्ट अगेंस्ट 5 लाख. बट इफ यू डोंट हैव, देन यू विल टेक अगेंस्ट अदर हेड्स. समझा? अब नाउ क्वेश्चन, एक्चुअल सही क्वेश्चन ये होता अगर यू वुड हैव आस्क्ड, सर तो भी फर्स्ट भी एडजस्ट 1 लाख, अनएडजस्टेड 1 लाख, देन यू कम टू स्टेप 2. दैट इज तो वेरी इजी. क्वेश्चन ये है कि दूसरा कोई इनकम ही नहीं है ड्यूरिंग द फुल ईयर, दिस इज योर फाइनेंशियल पोजीशन, बस इलेक्ट्रॉनिक्स, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स. तो यू डोंट हैव प्रॉफिट इन द सेम हेड, इंटरसोर्स नॉट पॉसिबल. यू डोंट हैव प्रॉफिट इन अदर हेड्स, इंटर हेड नॉट. जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ट्राई टू फर्स्ट एडजस्ट. फर्स्ट वेयर विल यू एडजस्ट? हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इंटरसोर्स. नहीं है देन ओनली यू विल गो टू अदर हेड्स, इंटर हेड. वो भी नहीं है, स्टेप नंबर 3, कैरी फॉरवर्ड. और इसमें क्या है, देयर इज नॉट वन सेक्शन. हर लॉस के लिए सेपरेट सेक्शन. हाउस प्रॉपर्टी के लिए 71B, बिजनेस के लिए 72, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए 73. ऐसे हेड बाय हेड दे हैव गिवन सेक्शन. इज दैट अंडरस्टूड? बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज इतना सा. कितना सा? इफ यू हैव प्रॉफिट्स इन द सेम हेड, you can't go to other head. If you have profit in the other hand, you can't carry forward. If set off is allowed, you have to take it. Set off is not optional, it is compulsory. आपको ये लग रहा होगा कि सर सपोजिंगली किसी एसएससी का प्रॉफिट है तब तो उसको लेना ही चाहिए ना. Why is he not taking? Because it is possible that profit is only 2,50,000. समझ लो कि लॉस है 1 लाख का इन हाउस प्रॉपर्टी, इन बिजनेस में 2,50,000 का प्रॉफिट है. आई एम सेइंग इट इज कंपल्सरी टू एडजस्ट. एंड यू आर थिंकिंग सर तो सब लोग करेंगे ना. नहीं, इट इज ओके टू नॉट एडजस्ट. तो 250 वैसे भी नो टैक्स, बिलो बेसिक एग्जेम्पशन. नेक्स्ट ईयर व्हेन आई विल क्रॉस 5 लाख 10 लाख का इनकम, तब एडजस्ट करने में ज्यादा मजा आएगा ना. तो पीपल पर्पसली डोंट एडजस्ट देयर लॉसेस सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट इन फ्यूचर ईयर्स. इसलिए वी आर सेइंग इट इज कंपल्सरी. एंड ऑफ कोर्स कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजंस विल टीच अस व्हिच लॉस वी कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स in future, against what it will be adjusted, if there is any extra condition or no. Everything will be taught to us by the set off wala chapter. I am going to cover all those things also with you. Is that clear to everyone? तो अभी के लिए we are just done with pick up a loss, search for profit. First in the same head, then in the other heads. Other head only if same head में नहीं है, and then carry forward. And boy is profit, girl is loss ना. ये ऐसा समझ लो कि I have not taught you only. I will teach you again in tomorrow only, no? Next Friday है ना कल. So tomorrow I will be covering and I will be telling you the logic also, and in all probabilities don't be surprised. कल खत्म हो जाएगा. हाँ हाँ, okay. I'll see you guys tomorrow. Please have a nice day. Thank you very much.